Hi everyone, good evening. How are you? Good evening everyone. So today we are going to start revision course on teaching aptitude. So just give me 1 second, I'm just starting the streaming. So finally my screen is visible to you. नॉइस है बैकग्राउंड में? Devika, it's not clear. Now it's better. अच्छा क्लियर है, ठीक है. So today we are going to start with the teaching aptitude and forget about this background page because I just forgot to add teaching aptitude and just by mistake I have added artificial intelligence as a background. ठीक है, तो उसको भूल जाओ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नहीं है, दिस इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास. And as you guys know that कि today we have 4 hour class and the topic is teaching aptitude, right? तो अभी कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि generally we have lots of topic in the teaching aptitude, right? But I have choose one of those topics जिससे question repeatedly they have asking. ठीक है, अभी भी जो 2 एग्जाम्स अभी भी हो चुके हैं जिनके, तो उनका भी मैंने पेपर एनालिसिस किया है. वहाँ से भी जिस एरिया से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो ये जो रिवीजन क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसके अंदर मैंने वही एरियाज और वही टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं जो टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, राइट? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Yeah. Okay. So let's start the discussion. And so this is the syllabus, as you guys very much familiar with the syllabus. And because it is a revision class, so I'm not taking that much amount of a time to revise any particular concept. I'm just assuming कि आपको थोड़ी बहुत टॉपिक्स के रिलेटेड नॉलेज ऑलरेडी है, एंड उनको रिफाइन करने के लिए बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन आई विल revise the topic and then we are going to solve the questions side by side. ठीक है, so this is the strategy we are going to follow to complete this particular unit teaching aptitude. पेपर 1 की जो रिविजन क्लासेस आपके अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल्स यू हैव ऑलरेडी सीन दैट कि every Sunday we have 4 hour class
and we are going to cover unit wise like teaching aptitude, research methodology, and your higher education and comprehension passages, whether it is aptitude class. So we are going to cover likewise. ठीक है, तो let's start the discussion, guys. Okay, so I've seen that most of the questions is related to the teaching. Devika, don't worry. First we have 2 hour class, फिर we have 6 to 8 we have class, then we have a class 9 to 11, 2 hour class. ठीक है, and I'll try to give my best कि आपको इन 2 घंटों का भी पता ना लगे. हम इतना इंटरेस्टिंग वे से इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करें. ठीक है, एक इसको बोझ नहीं समझना. एक डोंट फील लाइक कि we have to attend the class continuously 4 hour or 3.5 hour. We are going I have already prepared your PPTs likewise कि I have added a lot of pictures, very minimal amount of content, because I've seen that कि ना टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज हैं उसमें जो कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. ठीक है ना, और उस इतना सारा कंटेंट में अवेलेबिलिटी की वजह से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. बेसिकली हमें क्या चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कि कोई हमें ये बता दे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेसिकली होता क्या है. बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है, क्वेश्चंस को निकालना इट्स वेरी इजी, राइट. वी जस्ट वांट कि रिवीजन कुछ इस तरीके से हो कि हम बहुत ही जल्दी सारे टॉपिक्स को समझे और अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज द लास्ट टारगेट इज टू सोल्व द क्वेश्चंस, राइट. So that is a reason to make this subject very interesting. So I have added lots of pictures, lots of charts, lots of tables, right. And definitely we are able to solve all the questions related to the teaching aptitude. ठीक है, तो साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी करेंगे एंड कंसेप्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, गाइज. सो द फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग से आई हैव सीन दैट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, definitions of teaching, characteristics of teaching, role of a teacher. So the number of concepts are interrelated with this particular topic. So let's start the discussion on the definition of teaching. ठीक है, तो मॉरिसन के अकॉर्डिंग they have said कि teaching is a disciplined social process in which teacher influences the behavior of the less experienced pupil and helps him develop according to the needs and idea of the society. So guys, whatever I have mentioned in this PPT, there is nothing redundant information is available. Everything I have added, it has a very important and specified meaning. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि जो मैंने हाईलाइट किया है कि this is much important. Every line is important and that is the reason I have added in this PPT. I have not added any redundant information. ठीक है, तो ये आपके notes ही हैं, just like your short notes. Right, you don't need to waste your time to prepare your notes and something like that. It's already a short notes for you. You just have to revise this. That's it. ठीक है, and question solve करने, right? तो इसमें क्या कहा कि teaching is a discipline of social process. अब कई बार question ये आ जाता है कि teaching is a social process or it's a personal process. So teaching is a social process. मतलब कि teaching is not like कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. It's about कि मैं सबको socially सबको मद्देनजर रखते हुए आई एम प्रोवाइडिंग माई टीचिंग. ठीक है, तो वहाँ पर हम किसको प्रोवाइड करते हैं? वी हैव दोज हु हैव अ लेस एक्सपीरियंस पीपल एंड हेल्प्स टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द सोसाइटी. ठीक है, टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट. ऑब्वियसली इफ नो स्टूडेंट इन माई क्लास देन देर इज नो पर्पज ऑफ टीचिंग, एंड अगर स्टूडेंट्स एंड टीचर नहीं है तो देर इज टीचिंग वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, राइट. सो बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट टू अचीव. ठीक है, प्रेरणा, व्हाट हैपेंड?
right? So now we have a tripolar concept. So 1 or 2 times they have asked question from this area also, ki how the things teacher, student and curriculum, how these three variables are interrelated with each other. So teacher and student, these are the variable. तो टीचर हमारा कौन से वाला वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट मीन्स दैट कि मेरी जो टीचिंग है, द टीचिंग द टीचिंग माई टीचिंग वे, द वे ऑफ यूजिंग माई टीचिंग एड्स, है ना, माई टीचिंग ऑन द प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट. ठीक है ना. स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, स्टूडेंट बिहेवियर, इट्स डिपेंडेंट ऑन माई टीचिंग. ठीक है. तो स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टीचर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस करिकुलम, ये है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल. ठीक है. सो दिस इज हाउ दीज थ्री वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स करिकुलम की जगह पे इफ दे हैव मेंशन कॉन्टेक्स्ट तो कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट तो इट द सेम थिंग. ठीक है. सो द मेन थिंग इज कि हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंटरवीनिंग वेरिएबल है. ठीक है. उसके बाद टीचिंग के कुछ और ब्रॉड सेंस देख लेते हैं. ठीक है. आई एम नॉट गिविंग यू सच अ बिग पैराग्राफ. आपके लिए सिंपल दिस keywords are important to give the correct answer in the examinations. ठीक है. तो टीचिंग क्या है? टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग. अगर मेरी टीचिंग से आपको लर्निंग नहीं हो रही तो उस टीचिंग का कोई यूज नहीं है. राइट. सो दिस इज द फोरमोस्ट थिंग एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट. टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन. पर्पसफुल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई टीचिंग राइट नाउ? ठीक है. आपके पेपर 1 के अंदर आपका मार्क्स आप क्लियर करो, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगी, दिस इज माई पर्पस. तो अगर कोई पर्पस नहीं, सिर्फ हम ऐसे ही टीचिंग कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं है, उसको टीचिंग नहीं कहेंगे. राइट. टीचिंग ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर. टीचर इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन. देखो स्किलफुल तो है. राइट. बिकॉज आपको ये चीज पता होगी कि बहुत so many times people know so many concept but they are not able to teach properly. ठीक है ना. एंड कुछ लोगों को उतना ही कंटेंट पता होता है बट दे हैव वेरी दे हैव स्किल्स कि दे आर एबल टू कन्वे देयर नॉलेज टू द अदर पर्सन वेरी एफिशिएंटली. तो टीचिंग इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन एंड टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी. तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले मुझे पूरा स्केड्यूल रेडी करना है आप लोगों के लिए. उसके बाद मुझे क्या करना है? आई हैव टू डिसाइडेड कि एट विच डेट आई विल डिलीवर व्हाट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ टॉपिक. और उस टॉपिक में से भी आई हैव टू प्रिपेयर माई लेक्चर प्लान कि इतने फर्स्ट आवर में आई हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट, सेकेंड आवर में आई हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट. सो दिस इज अ प्लान एक्टिविटी. सो गाइज द प्रॉब्लम everybody faced in this particular paper 1 कि they have given you 4 to 5 या 6 options. और क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि सारे ही जो टॉपिक्स हैं ऑप्शंस हैं आर करेक्ट. ठीक है ना. तो जो जजमेंट करनी होती है वो ये कहनी होती है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है. ठीक है ना. तो उसके लिए हमें कोई गेस नहीं करना. जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को माइंड पर रखना है कि टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं. लर्निंग इंपॉर्टेंट. अगर लर्निंग नहीं होगी तो टीचिंग का कोई यूज़ नहीं है. ठीक है. तो ये ऑप्शन में तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली कम. पर्पसफुल भी होना चाहिए. अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो वो तो कैजुअल टॉक होगी ना, उसको टीचिंग नहीं कहेंगे. फिर अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर. अगर लर्नर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो देयर इज नो यूज. स्किलफुल एप्लीकेशन एंड प्लान एक्टिविटी. ठीक है ना. तो सिर्फ आपको इतना समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, रटना कुछ भी नहीं है. राइट. उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज asked 2 to 3 times in the exam and every time they just added 1 or 2 points over here and they have just directly asked the question from this area. And the question is, which of the following statement differentiate teaching from learning?
ठीक है, लर्निंग और टीचर में कौन से पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड इट, एंड दीज आर योर ऑप्शंस. आई थिंक द ऑप्शन नंबर 4th is not visible, so the option number 4 is 3, 4, 5. Okay, so please give me the correct answer of this question. I think it's very easy, and most of you are very much familiar with this question. Please tell me the correct answer of this question. So we have just completed the definition of the teaching, right? And we have just to what is the best way to solve this types of a question is that guys, elimination method. क्योंकि जब आपको लगता है कि सारे ही ऑप्शंस एक जैसे हैं और सब एक तरीके से आपको लगेगा कि करेक्ट ही बता रहे हैं टू पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उस केस में व्हाट वर्क्स, एलिमिनेशन मेथड. तो जो पॉइंट बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा तो डिसाइड, ट्राई टू कट डाउन दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक इट आउट. एवरीबडी इज सेइंग द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. सो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट while लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो पक्का करेक्ट है. टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, मतलब टीचिंग से टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग. ठीक है. लाइन नंबर 3 is just an example. Should we consider it? Okay, I'm going to tell you. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम टीचिंग से ही लर्निंग हो सकती है, राइट? ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, राइट? तो ऐसा नहीं कि हम लर्निंग और भी चीज़ों से भी हम कर सकते हैं, हम खुद भी चीज़ों अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ें सीख सकते हैं, राइट? तो टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग. तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये पॉइंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बिकॉज एज यू गाइज आर करेक्ट, बिकॉज दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है ना, ये एक तरह का क्या है, एग्जाम्पल है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दे हैव गिवन अ की, उस की में ये जो आंसर था उन्होंने ये करेक्ट किया होता. बाय द वे वैसे होना नहीं चाहिए. ठीक है, टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेक प्लेस. क्या ऐसा पॉसिबल है कि टीचिंग जो है आपकी वो लर्निंग के साथ हो, मतलब विदाउट लर्निंग हो, उस टीचिंग का कोई फायदा नहीं है. तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. तो जो 4 वाले ऑप्शन है तो दोनों के दोनों क्या है, इनकरेक्ट है. या so in teaching influence is directed towards learning and learner while in learning it's towards oneself. it means that कि जब टीचिंग करते हो तो उसमें लर्निंग होती है और जो लर्नर है वो अपने लिए लर्न करता है. तो ये 1 ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, 5th इज एब्सोल्युटली राइट और 2nd भी हमारा राइट है. क्यों? क्योंकि टीचिंग से क्या हो रही है, हमारी लर्निंग हो रही है. सो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 to 5 इज द करेक्ट वन. बट अगर उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो नेक्स्ट पॉसिबल जो ऑप्शन होगा हमें वो चेकआउट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका जो बेस्ट जो आपने चूज किया है वो ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू चूज द नेक्स्ट पॉसिबल आंसर. ठीक है, ओके. सो द नेचर ऑफ अ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग में भी देख लेते हैं कि व्हाट द थिंग्स वी हैव टू ऐड ऑन. डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन. ठीक है, डायनामिक क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वी हैव सीन द इन डिफरेंसेस. ठीक है, क्लास में है, सबका IQ लेवल अलग है तो उसके अकॉर्डिंगली, या फिर आई हैव अ हमारी जो आसपास की जो इन्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट आई डोंट हैव अ. Yes, Amandeep, 2 is not differentiating between the 2. Yeah, but actually why the 3 is not there, because 3 is just an example. So look at here now. Dynamic, social and human. Teaching is not a fundamental concept because it is a greatly influenced by social. So why it is a dynamic? Because according to the class, according to the aids I have, according to the facility, I have to be very flexible in the class.
ठीक है ना. अगर मुझे लगेगा कि मुझे अभी 15 to 20 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर यूनिट, अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा उस स्पीड में, देन आई हैव टू चेंज. ठीक है ना. अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आई हैव टू वेरी फ्लेक्सिबल भी होना बहुत ज़रूरी है. तो डायनामिकली आई हैव टू चेंज इट. ये एक सोशल प्रोसेस है और हमें टीचर को एक ह्यूमन भी होना चाहिए, राइट. उसके बाद ऑप्शन इज आर्ट एंड साइंस. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस है. व्हाई इट इज़ बिकॉज आर्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी आर्टफुल एक्ट आपको करनी होती है. कि इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास नॉलेज है, इट डजंट मीन कि यू आर अ गुड टीचर. तो ये इट्स लाइक अ आर्ट कि हर टीचर को अपने तरीके से आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ाओगे, ये भी एक ये भी एक तरह की आर्ट है, राइट. और साइंस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स लगाकर हम टीचिंग करते हैं. तो दैट इज द रीजन यहाँ पर हम आर्ट एंड साइंस, दिस इज कंटेन्स बोथ इन द नेचर ऑफ टीचिंग. उसके बाद क्या है, डाइवर्स इन एप्लीकेशंस. ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, राइट. ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन का क्या मतलब होता है, कैन एनीबडी टेल मी? Yeah. Don't worry. Yeah, I'll try to convert in both the languages so that everybody will comfortable. So guys, the main points over here is कि I'm talking about the nature of a teaching. तो in the teaching में the main point is dynamic. It should be dynamic. Okay guys. Okay. So it should be dynamic. It should be social and it should be human. Art and science. Why it is art and science? Because everybody has their own way of teaching, so that is the reason we are saying it's like a art. And why we are saying it is a science? Because why we are saying it is science? Because here we are using some rules, regulations and procedure, है ना. So that is the reason it is a science. और इसके अंदर वी हैव अ डाइवर्स एप्लीकेशंस है, जैसे कि हम फॉर्मल टीचिंग कर सकते हैं, वी कैन यूज इनफॉर्मल टीचिंग, वी कैन यूज इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, राइट. इंडोक्ट्रिनेशन. सो दीज आर सम एप्लीकेशंस इन द टीचिंग. इंडोक्ट्रिनेशन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन? या राइट. सो या जो चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं या जो हमारे बिलीव्स एंड हमारे आइडियल्स होते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द इंडोक्ट्रिनेशन, राइट. सो द एम ऑफ अ टीचिंग इज टीचिंग. ठीक है, टीचिंग में क्या है, टीचिंग इज नॉट लाइक कि आई हैव टीच अ पर्टिकुलर आई टीच यू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, सिर्फ यहाँ तक ही माई टीचिंग इज लिमिटेड. नो, if with the help of my teaching, if I have able to modify the behavior in a very good sense of my learner, then in that case I'm going to say that ki now this teaching is effective, right. Conditioning to improve the learning skills of student. Training, these are the aim. It means that the last one is nature. So nature are social, dynamic. So I think with the help of this short notes ना, the complete picture should be kept in your mind कि भाई देखो nature के अंदर these are the characteristics. What about the aim? What is my aim of teaching is कि teaching करना conditioning में to improve the learning skills, right. उसके बाद training, yes I will provide the PDF, don't worry. And instruction and indoctrination, जो आपके ऑलरेडी बिलीव्स हैं, आइडियल्स हैं, सो दैट विल कम अंडर द इंस्ट्रक्शंस. एंड इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? डेवलपिंग ऑफ द नॉलेज. ठीक है, सो दीज आर द माई एम ऑफ अ टीचिंग गाइज, राइट. तो आई थिंक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. नाउ वट एवर वी हैव लर्न सो फार अबाउट द टीचिंग, सो लेट्स सी दैट दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दिस इज राइट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Interaction between teacher and student, तभी teaching is possible. Provide guidance and training,
अब मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस एंड द ट्रेनिंग अभी चल रही है आपकी, और गाइडेंस कैसे करना है कैसे नहीं करना, एवरीथिंग इज आई एम प्रोवाइडिंग ओवर हियर. आर्ट टू गिव नॉलेज. अब दिस इज एन आर्ट गाइज. अब लेट्स सी in Acadflix we have a number of teachers, Deepak sir, Abdul sir, right, me, Pawan sir, Kapil sir, right. So everybody has their own style of a teaching, right. So art to give a knowledge, so to give you knowledge, it's like art, it depends upon the human to human, right. Science to educate, fact and causes, this is what we have discussed. Why science? Because we are using some procedures, rules, and we are following so all the things, so that is the reason science is a part of the characteristics of a teaching. Now this is a social process, yeah, we know that, because it's not a personal process. अब if I am like a teacher, अब मैं आपको ये बोलूँ कि if somebody is asking us a question कि मैम we are not able to understand this particular point, the fourth point, obviously I have already told you कि 4 to 5 times कि भाई what is the meaning of art, why we are adding this particular point in the characteristics of teaching. Yeah, so if somebody is not able to understand and then finally I have said that कि भाई I don't think so कि you are able to crack this paper number 1 because you are not able to understand this single sa point, so this is really bad. तो इट्स लाइक कि आई एम डीमोटिवेट द स्टूडेंट, ठीक है ना. दिस शुड नॉट बी हैपन. टीचर शुड बी ऑलवेज इट्स लाइक दैट कि दे हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ठीक है. अब टीचिंग इज नॉट लाइक इट शुड बी ऑलवेज अ फॉर्मल. टीचिंग कैन बी अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑल्सो, ठीक है ना. इनफॉर्मल जैसे डाउट सेशंस में हम कुछ we are discussing about something and we are also I'm taking your doubts and all like that, ठीक है. तो ये this come under part of this also. Now individual differences. अब देखो कि in the class some students are comfortable with Hindi, few students are comfortable with English, and few students are those are comfortable with English also and Hindi also. अब as a teacher I have to take care of this thing कि I have to take care of individual differences. कुछ टॉपिक्स को आई हैव टू एक्सप्लेन इन हिंदी, जो हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकते हैं, एंड द टॉपिक्स, the main points and all the things I have to convert in English also, so that those who don't know English, Hindi, they guys also able to understand it, ठीक है. So इन सारी चीज़ों को as a teacher we have to keep in their mind. And the intellectual activity is also mindful activities should be a part of the characteristics of a teaching, ठीक है. So ये according to the previous year questions or the correct answers of related to the characteristics of teaching, I have make a list of the 10 most important characteristics, and this is for you. यहाँ से ही you have to understand what the things we have to cover in the teaching. So I hope this much amount of work till now it's clear to you guys, right? Clear? So let's proceed, and I have added few pictures for you also ताकि boring ना लगे ये class, because this is a completely theoretical class and most of the time people in the theory class get bored, and so that is the reason to make this class interesting. I've just added few photos also, right? So the next topic is the role of a teacher. So every topic you have started, keep in your mind कि भाई I am a teacher, and what what is my role in that particular situation when I'm teaching, ठीक है. So the first one is a learning facilitator. Yeah, क्योंकि we know that कि teaching implies learning, तो teacher is a learning facilitator, ठीक है. लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए. वाई? बिकॉज लेट्स सपोज कि राइट नाउ आई एम टीचिंग यू टीचिंग एप्टीट्यूड. अब आफ्टर सम टाइम्स, अब जैसे कि एजुकेशन पॉलिसीज में दोबारा से रिवाइजन हुआ, राइट, एजुकेशन पॉलिसीज आर रिवाइज्ड. सो इन दैट केस आई हैव ऑल्सो गेट टू नो कि भाई व्हाट आर द न्यू पॉलिसीज एंड हाउ दे आर गोइंग टू implement in our education system. So this thing as a teacher I should also know
तो द टीचर शुड ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. ऐसा नहीं है कि जितना पढ़ लिया उतना बहुत है एंड आई एम जस्ट कीप टेलिंग द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन विदाउट अपग्रेडिंग माई सेल्फ. ठीक है, सो लाइफ लॉन्ग लर्नर. नाउ द कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट, वाई कैटलिस्ट क्या करता है? उकसाना इंग्लिश में, राइट? हिंदी में उकसाना, मतलब कि मैं एज अ कैटलिस्ट का मैं काम करूं कि अगर कुछ बच्चे लाइक ऐसे हैं कि मैम because this is the last minute revision and the complete year I have not even touched the teaching aptitude, then how I am able to cover the entire particular unit of teaching aptitude within a 4 hour. ठीक है ना? तो एज अ कैटलिस्ट मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि यहाँ पर इन दिस क्लास आई हैव एडेड वेरी प्रिसाइज पॉइंट्स ओवर हियर कि अगर आप इतना भी कर लेते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, तो कैटलिस्ट इस तरह का भी काम करता है. ठीक है ना? और चीज़ों को तेज करने के लिए कि अगर कोई हम स्लो चल रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी इट्स वेरी मच वर्क. नाउ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गाइज हैव सीन दैट कि 15 to 18 subjects are included in the NT-NET syllabus. ठीक है, अब only one faculty is available in that particular coaching center and he is always teaching all the subjects of related of NT-NET. ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में द पर्सन इज वेरी मच एक्सपर्ट, कुछ सब्जेक्ट्स में ही इज नॉट वेरी मच एक्सपर्ट, ऐसा हो सकता है, राइट? तो रोल ऑफ अ टीचर का क्या है कि जो चीज़ सब्जेक्ट में ही इज परफेक्ट और ही इज एक्सपर्ट, तो ही हैज़ टू ऑप्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, पेडालॉजिकल एक्सपर्ट भी होना चाहिए. पेडालॉजिकल इज रिलेटेड टू व्हाट? संडे इवनिंग डेडिकेट करना. वाओ मैम, मोना, व्हाट डज इट मीन? पेडागोजिकल एक्सपर्ट. सो पेडागोजिकल एक्सपर्ट कैसे कि देखो, पेडागोजी क्या होती है? ओरिएंट टू द चाइल्ड. ठीक है, जो बच्चों के लिए जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कम अंडर दी पेडागोजिकल. ठीक है ना? चाइल्ड स्टडी. वेरी गुड. या तो पेडागोजिकल स्टडी एक्सपर्ट भी होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू ओनली द I'm just only providing you the content और teaching. Pedagogically भी मुझे हर बच्चे को किस तरीके से क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कैसे उसको हैंडल करता है, हाउ टू हैंडल द handle it and what type of aids I have to use it that particular point of time. So that all the things I have to know. So the teacher should be a pedagogical expert also, or he should be a good human, right? So इसमें सारी qualities हमारे morals वगैरह all the things is come under in this particular point, right? So these 6, there are number of roles are there, but the most important 6 roles are present here. ठीक है, learning, catalyst, subject expert, pedagogical expert and human, right? Get it? So let's move further now. Now these are your maxims or you can say the principles of teaching. ठीक है, अब यहाँ से they have asked number of questions every year. ठीक है ना? one question तो they definitely they are going to ask every year from the maxims, guys. Right? So now tell me, before we are going to proceed further. So tell me one thing. As a teacher, when you are going to start any particular topic, ठीक है ना? So from where you are going to start? जैसे कि our topic is, today's topic is artificial neural network. Let's just take the one example, artificial neural network. So this is my topic and everybody in the class has no clue about the artificial neural network. ठीक है? Now I have 2 things. ठीक है ना? Yeah. So now I have a 2 way. या तो I have just started from the artificial neural network कि देखो artificial neural network
is a it's a kind of art network. All the it's a kind of a neural network that neurons are connected and they're taking the input and then sum up and apply the activation function and then find out the output. या फिर आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क. अब बच्चों को बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के बारे में दे हैव सम नॉलेज, है ना. सो दे हैव नॉलेज अबाउट द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क. सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया को हम क्या कह सकते हैं गाइस, बेसिक. ये जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है जस्ट रिलेटेड विद द टर्म्स. And I will guarantee you any question related to the maxim you are definitely will give the correct answer. तो इसको मैं क्या कहूंगी, बेसिक. मतलब it's a knowledge everybody knows about it. ठीक है. This biological neural network वाला part should be a concrete. ये concrete भी होगा. Concrete means raw. ठीक है ना. रो जितना उसको कच्चा पक्का कैसे भी पता है उसको, तो इट शुड बी ए कॉन्क्रीट. क्या ये पर्टिकुलर है? इज दिस अ पर्टिकुलर? क्योंकि वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो स्पेसिफाइड टॉपिक उसको पता है. दे हैव नो अबाउट इट, दिस बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क. सो इट शुड बी अ पर्टिकुलर. एंड दिस यू कैन से दिस बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इज नोन टू एवरीवन. ये सबको पता है क्लास में. दिस इज अननोन. ठीक है ना. उसके बाद this is empirical. मतलब इसके अंदर we are not applying any kind of reasoning or something like that. This thing we have no, right? And this is what is a induction. This is induction, and this is also specific. Very good. Anything else? Any other point you want to add on? ठीक है. तो अब एज अ टीचर फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट इट गाइज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. कि यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, यू हैव टू स्टार्ट विद द नोन थिंग, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू स्टार्ट विद द इंपेरिकल थिंग, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडक्शन. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज बिटवीन द इंडक्शन एंड डिडक्शन. उसके बारे में वी विल टॉक इट अबाउट लेटर. बस एक छोटा सा पॉइंट हमको ये समझना है, इंडक्शन का मतलब क्या है. इंडक्शन मीन्स व्हाट? इंडक्शन मीन्स फ्रॉम वेयर टू हैव टू स्टार्ट इट. अब जो भी नॉलेज आपको पता है, इस प्रोसेस को ही इंडक्शन कहते हैं. द वट एवर द नॉलेज यू नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एनीथिंग यू नो. जैसे कि यू नो द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द व्हाट? कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्या है? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसके बारे में यू हैव नो आइडिया. ठीक है. और डिटेक्शन इज व्हाट? डिटेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द रूल्स. जैसे कि रूल्स हैं हमारे पास, रूल्स है, कुछ प्रोसीजर्स हैं. लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल का मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने स्टार्ट किया यहीं से. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट किया कि दिस इज द इनपुट, दीज आर द न्यूरॉन एंड हियर आई एम अप्लाइंग द समेशन एंड हियर आई एम अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन एंड यू विल गेट द फाइनली आउटपुट. अब यहां से आई हैव टू मूव टूवर्ड्स दी कि देखो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है एंड आई एम गोइंग टू नाउ कंपेयर इट विद द बायोलॉजिकल न्यूरॉन. में भी ऐसा ही होता है कि यू विल गेट द इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड. जैसे कि इफ दिस इज अ हॉट पैन, आई जस्ट take it in my hand and this comes as an input and finally all the signals is going into my brain and finally I analyze it and I will give you the response. So that's kind of output. अब यहाँ पर क्या हुआ? ये वाली चीज is unknown to me and this thing is known to me. ठीक है ना. अब unknown से known की तरफ आ रहे हो. This is a deduction and here we are going to known to unknown. This is what we call it as a induction. Got it? ठीक है. So this is what? This is top to down and this is what? Bottom to up. ठीक है. So let's talk about it later. But here our point is कि now this artificial neural network जहां से हमने start किया, now this is what is a we are going to go from
बेसिक टू हाई, सो लेट्स सी इट हियर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किसको फेवर कर रहा है, इंडक्शन को या डिडक्शन को। सो आवर जो मैक्सिम्स, either they are talk about the maxims, either they can talk about the principles, both have the same thing. So our teaching is basically maxims of teaching follow induction method, ठीक है। तो induction method में मतलब you have to start with the simple thing and go to the complex area. अब बच्चों को जो known, the children whatever they have known about the whatever the topic you are teaching now, you have to move from known to unknown, seen to unseen, concrete, रो से इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इमेजिनेट, जहां से इमेजिनेटिव वाले पार्ट तक यू हैव टू रीच, पर्टिकुलर टू जर्नल, होल मतलब उतना सारा होल टू पार्ट, इंडेफिनाइट टू डेफिनाइट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस और सिंथेसिस में व्हाट इज द डिफरेंस गाइज, एनालिसिस और सिंथेसिस, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी हैव अ वन थिंग एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल पार्ट ताकि वी गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और सिंथेसिस में वी हैव अ डिफरेंट स्मॉल पार्ट एंड फाइनली वी आर एबल टू कॉन्क्रीट इट इनटू द वन conclusion. So this is a synthesis, ठीक है। So these are the principles or you can say the maxims of teaching, ठीक है। maxims और principle same thing। आपको ये समझना है कि induction और deduction basically हैं क्या, ठीक है। So let's see some differences between these two. Let's see that. What are the main, maybe in the paper they can ask this question, so let's see that. Not added, yeah. So you guys tell me, I'm going to ask questions from you, and now you know very much what is the basic difference between the inductive and deductive, ठीक है। So from where we are going to start it, हम कहाँ से start करते हैं यहाँ पर, we are going to start from the conclusion, जो भी कंक्लूजन में दे हैव नोट सम स्मॉल थिंग्स ना, वी आर स्टार्ट फ्रॉम द कंक्लूजन। और यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करें, वी आर स्टार्ट फ्रॉम द प्रीमिसेस मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हमें बताएंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। और यहाँ हम सीधा कंक्लूजन से स्टार्ट करें। तो कंक्लूजन मतलब कि जैसे लेट्स सपोज आई हैव टू टीच यू अबाउट द न्यूरल नेटवर्क, तो मैं डायरेक्टली आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में बता रही हूँ। देखो आपने न्यूरल नेटवर्क का यू नो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द कंक्लूजन एंड देन गोइंग टूवर्ड्स द, जैसे कि मैंने आपको यू रिमेंबर दोज हु हैव अटेंडेड ऑफ माय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, है ना। देन आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स कि जैसे कि दिस इज अ हॉट पैन and somebody is just touched this hot pan and finally they are going to react it. So guys, so what is this? This is an input and this is a neuron. अब ये जो neuron है are available in our brain and summation is going on. Activation function तो लगाना पड़ेगा ना. Why we are applying the activation function? Because we know the answer in a one single form, है ना. So that is the reason we are using the activation function and finally we get the output. ठीक है ना. तो फिर मैंने क्या कहा आपको कि these are the से रट्टा नहीं माना या अगर आपको if you know the concept that's really good and if you are always get confused कि okay bottom to up और up to bottom कहाँ पर था, so इस confusion को solve करने के लिए that is the reason I'm giving you this example. ठीक है guys. तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से आई स्टार्टेड एंड देन आई ट्राई टू रिलेटेड कि ओके x1 एंड x2 आर टू इनपुट्स एंड फाइनली यू गेट द आउटपुट. सो गाइज दिस इज द रूल कि मतलब x1 एंड दीज आर द वेट्स. सो x1 को मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ एंड फाइनली यू विल गेट इट दिस एंड समेशन और फिर अप्लाई करो एक्टिवेशन फंक्शन एंड फाइनली यू गेट द आंसर. ठीक है ना. तो मैंने कौन सी अप्रोच स्टार्ट की,
इंडक्टिव। इंडक्टिव में मतलब समझाना तो मुझे न्यूरल नेटवर्क ही था, ये वाला कंसेप्ट ही समझाना था, बट मैं यहाँ से यहाँ गई, ये जो रूल्स थे। तो इसका मतलब कहाँ से गए हम, स्टार्ट किया फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड गाइस, फ्रॉम द कंक्लूजन पोर्शन से वी हैव स्टार्टेड हियर। और यहाँ पर हम कहाँ से वी हैव स्टार्टेड, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या आते, ये रूल, दिस रूल, इस रूल से स्टार्ट करते हुए मुझे समझाना था आपको। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। सो दैट इज द रीजन, देखो कंक्लूजन से इफ वी आर स्टार्टिंग, सो दैट इज द रीजन दिस इज अ बॉटम टू अप अप्रोच। दैट इज द ओनली रीजन दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच। एंड प्रीमिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीमिसेस ही तो होता है, सबसे पहले प्रीमिसेस होते हैं, वी आर प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 एंड फाइनली वी आर कंक्लूडेड। सो दैट इज द रीजन दिस इज अ टॉप टू डाउन अप्रोच। यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में यू हैव नॉलेज अबाउट द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, बट यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच इज अ ब्रॉडर टर्म. सो आई एम गोइंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टू द जनरल, एंड यहाँ पर कंप्लीटली उल्टा, जनरल टू स्पेसिफिक. ठीक है, ओके. सो आई थिंक इतना भी if you have idea ना guys, the whatever the point they have asked you related to the induction and detector, finally you are with the help of your logical reasoning you are definitely able to relate it with the rest of the options अगर उन्होंने कुछ घुमा फिरा के they have asked you. ठीक है, I hope it's clear about these two. Very good. चलो, तो आई नो दैट कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. बस माई मोटिव इज दैट कि आई डोंट वॉन्ट यू आर गोइंग टू रिवाइज द कंप्लीट videos or resources whatever you have learned in the last few weeks, because this is not the right time to completely दोबारा से videos देखना और ये सारी चीजें. My motive just you just revise is whatever you have learned so far. ठीक है ना, this is my purpose. Right. So this is pedagogy. So let's start with the. तो देखो pedagogy, तो pedagogy आपको पता है. अच्छा, मोना नहीं किया, ओके कोई बात नहीं. जिसने किया है उनके लिए बोनस है, जिन्होंने इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड टिल यट, सो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू कि इस टाइम पर भी यू आर एबल टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स. बट माई सजेशन इज दैट कि गाइज, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस क्लास, है ना, बिकॉज स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो. सो माई सजेशन इज कि देखो, एवरी संडे आई एम गोइंग टू टेक योर क्लासेस, ठीक है ना, 4 hour क्लास, एंड इन दिस 4 hour क्लास आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवाइज all important topics of that particular topic. अब now your responsibility is that कि after taking the class ना, this class, after taking the class you have a 6 days, क्योंकि next Monday को Sunday को again we have a class, ठीक है ना. तो what you have to do is in these 6 days ना guys, try to solve the questions as much as possible, previous year questions. Nilima, you definitely will get the PDF, don't worry, I will share it in that particular Super 30 batch. ठीक है, ठीक है. If you guys are waiting for me, so I'll try to give my best and will guide you also कि भाई how to solve the, yeah, so that okay, so number of websites are there. I think there is one website is also there, exam race से I think there is a website. उसके अंदर all the previous year questions of NTA NET of paper 1 are there, and with the question they have also mentioned the answer, है ना. So that will be easy for you to find it out the correct answer और ये वाला portion. तो आपको क्या करना है, teaching aptitude complete हुआ तो I think 2019 तक they have uploaded the question papers. तो
2019 से लेके पीछे वाले जितना भी आप कर सकते हो उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कर डालो. या आई थिंक यही है. अगर नहीं होगा तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ योर वेबसाइट व्हाट्सएप. आई विल टेल यू. ठीक है, मैं बता दूंगी. आई विल टेल यू. राइट. Okay. Solution Adda is also there. Yeah, you can opt that option also. Right. Okay. So मतलब my motive is that कि भाई देखो इस क्लास के अंदर I will try to complete ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, बट इफ स्टिल आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट ना, तो यू डोंट नीड टू गो दैट कि अच्छा ये वाला टॉपिक आई हैव टू कवर इट. नो, डोंट यूज दिस पर्टिकुलर इट्स फाइन. कैटफ्लिक्स क्रैश कोर्स में हो या सुपर 30 के अंदर हो, किसी भी कोर्स के अंदर, इफ यू हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इट ना, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. ठीक है. ओके. सो the best strategy is that ki 4 hours session, and in the rest of the 6 days you have to revise, you have to solve the previous year questions of the teaching aptitude. अब उस teaching aptitude में if you find out कि this particular topic मैम ने cover नहीं किया, या फिर I'm not able to solve that particular topic, कुछ भी whatever the reason is, try to just write it down that particular topic और उसको फिर अलग से complete आपको करना है. ठीक है ना. ये बेस्ट वे है आपको करने का. एंड आई विल अश्योर यू दैट गाइज, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग 11 नवंबर से पहले, अगर मैं आप सबको ये चीज बोल रही हूँ, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम कि नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू काउंट इट आउट कि भाई देखो दीज आर द डेज आर लेफ्ट and सबने इतना कर लिया and we have not even started that particular unit. So please don't do this. You have now sufficient amount of time. अगर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, जिनको लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो एज अ भगवान का आशीर्वाद, सो आप ये समझो कि आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस टाइम कि आपका एग्जाम सबसे लास्ट में है एंड यू आर एबल टू सी ऑल कि जिनके भी पेपर 1 के हो रहे हैं, डेली एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर 1 के क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं. राइट. पेपर 1 के क्वेश्चंस आ रही है. बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको करनी है क्योंकि डेली पेपर 1 के क्वेश्चंस की वीडियोस आ रहे हैं कि कहाँ पर कौन से एरिया से कौन से क्वेश्चन पूछे. आपको पूरा अपडेट रहना है. राइट. कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा अच्छे से प्लान करना है इसको. डेडिकेटली 11 नवंबर तक अपने आप को जितना भी अपनी जो लिमिट्स हैं आपकी पढ़ने की, पूरा जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो. थोड़ा नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना कर दो. एंड आई विल शो यू कि अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी आर गोइंग टू फॉलो इट ना गाइज, यू विल डेफिनेटली स्कोर 70+. और अगर आप 70+ आप स्कोर कर लेते हो, मेरे अकॉर्डिंगली आई एम नॉट सेइंग कि 90+ ही करो, 80+ ही करो. मैं अकॉर्डिंग टू मी, if you are preparing well for paper number 2 and if you are scoring 70+ guys, ना definitely I'll assure you कि you will get the GRF, क्योंकि 70+ is a very good score in the paper number 1. वो बहुत अच्छा स्कोर है और एक टेंशन आपकी खत्म हो जाती है पेपर नंबर 2 के लिए कि अगर उसके कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट आपने बाय मिस्टेक भी गलत कर दिए तो यू हैव अ चांस, यू विल अश्योर कि आपका GRF हो जाएगा. ठीक है. तो वैसे तो टारगेट हमें कितना करना है, 80+ वी आर टारगेटिंग. तो अगर 80+ करेंगे तो 70 तक का तो टारगेट हमारा कम डेफिनेटली अचीव हो जाएगा. जिन्होंने अब तक भी नहीं किया स्टार्ट, तो डोंट वरी गाइज, इजिली हो जाएगा कंप्लीट. ये बहुत अभी जो हमारे पास वी हैव कंप्लीट 1 month लेफ्ट और हर टॉपिक को करने के लिए, ये पेपर 1 को कंप्लीट करने के लिए 1 month इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. So let's start the pedagogy now. Pedagogy. So pedagogy, you know that orient to child learning. ठीक है ना.
15 ईयर्स से पहले जो कैटेगरी के जो पीपल होते हैं दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द पेडागोजी, जिनको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसे करना है, व्हाट टू टीच. These are the 4 questions which come under in this complete pedagogy. अब ये questions देखो. What to teach, पढ़ाना क्या है. What to teach, why to teach, पढ़ाना ही क्यों है, जिसके अंदर हमारे we have completed the objectives of a teaching. You know that ना, objectives of a teaching. Bloom's taxonomy is a part of this. Why, how to teach, अब पढ़ाना कैसे. we have a methods guys. मेथड्स है ना हमारे पास, डिफरेंट मेथड्स. कौन से मेथड्स हैं. लेक्चर मेथड वी हैव, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वी हैव, राइट, डिस्कशन मेथड वी हैव, ह्यूरिस्टिक मेथड वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स. एंड प्लस वी हैव एड्स ऑल्सो, मतलब टीचिंग एड्स. मतलब अब मुझे पढ़ाने के लिए आई वॉन्ट दिस डिजिटल पैड एंड पैन, I want mic, I want internet. These are this is my teaching aids, right? तो guys, what to teach में आपका content, how to prepare your content, that the complete thing is come under this question. अब why to teach, पढ़ाना क्यों है भाई. Objectives, I have to fulfill the objectives of the teaching. So for that I need to give the answer of why to teach. अब now how to teach, teaching methods, right? So mostly they have definitely asked the question from the teaching methods, and this is very important area in teaching aptitude, and this we are going to definitely I'm going to cover in today's session in a very deep manner, कि इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से ये टॉपिक के सारे पोर्शंस कंप्लीट हो जाए. उसके बाद है इवेल्युएशन, मतलब कि अब आप you have already worked on your content, objectives and how to teach. Now the last thing which is left is evaluation. भाई how to evaluate it, है ना. बच्चों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, students get it or not your concept or your style या फिर जो learning आपने उनको provide की है, they are get it or not. How I am able to evaluate? With the help of test, with the help of questions. I can ask some questions, I will give you some questions in between. और या फिर मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, लाइक दिस. सो दिस कम अंडर इन द इवैल्यूएशन पोर्शन. सो बेसिकली पेडागोजी विल कवर दीज 4 क्वेश्चन इन द इंटायर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना. और उसी को आंसर आपको करते करते ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, तो जिनको जो लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं वो अपने आंसर दे सकते हैं, उनका रिवाइज हो जाएगा इस चीज में. सो दैट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड. या सो लेट्स स्टार्ट टू गिव द आंसर ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेडागोजी गाइज, कि व्हाट टू टीच. बेसिकली पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच. सो इन दिस what we are going to cover it guys, content analysis. We have to analyze the content. अब in today's class I have to teach you paper 1 is assigned to me, ठीक है ना. paper 1 is assigned to me. Now I have to decide it कि okay, in paper number 1 we have a 10 subjects, so I have to divide it. अब now divide like this कि teaching aptitude, research methodology, higher education, like this. But in particular subject also I have to decide it which topic I am going to start, from where I have to start it, from where I am going to end it, what particular topics I am going to add it in my the whole lecture plan, ठीक है ना. So this kind of analysis come under in the content analysis. Okay, so breaking down the bigger concept into the smaller meaningful concept. Systematized teaching should be there, ठीक है ना. Important terms, principle, rules, ideas of the lessons must be related. अब मेरा principle क्या है, which rules I am going to follow it, all the things should be part of it, ठीक है ना. अब steps of content analysis. अब content की analysis के लिए, for the content analysis, what step I have to follow it. Use of previous knowledge. Up as a students, whatever I've started from, whatever the topic I've started, so I'm going firstly I have to ask कि भाई what is the what you have already know about that particular topic. तो यहाँ से आपको start करना है.
फिर आपको रेफरेंसेस, यू हैव टू स्टार्ट विद द रेफरेंसेस. अब रेफरेंसेस मतलब कि जो आपको चीजें पता है उसको रेफर करना है कि देखो यहाँ से इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो गाइज यू नो अबाउट द बायोलॉजिकल नेटवर्क. हाँ जी पता है. ओके, यू नो दैट कि बायोलॉजिकल नेटवर्क से हाउ द इनपुट्स आर कमिंग. यू गाइज की येस वी नो दैट इफ वी आर गोइंग टू टच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सो वी आर गिविंग द इनपुट. अच्छा ठीक है. अब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, अब उसको समझाना उन बच्चों को उसके चीज के लिए. फिर उनके सिक्वेंसिंग लगाना कि देखो पहले मुझे ये करवाना है, पहले मैं उनको बायोलॉजिकल नेटवर्क के बारे में आई विल टीच देम, देन आई विल गिव देम अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एंड उसके बाद आई विल गिव देम रूल्स, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू इवेलुएट द होल कंसेप्ट. सो दिस इज द सिक्वेंसिंग विच वी आर यूजिंग द कंटेंट एनालिसिस. ठीक है guys, those who are not comfortable with Hindi, please comment ki are you guys now comfortable in the class? Are you getting the concepts or not? Please reply. Okay, so now let's see this. So everybody, most of you are very much about familiar about 3H. ठीक है, 3H. तो 3H, what is this 3H? Head, heart and hand. ठीक है. Now most of you are thinking about कि why I have added this image with this concept. ठीक है. तो basically you know the name of this person. इनका सबको पता ही होगा, आमिर खान. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? एनीबडी नोज अबाउट इट? हु इज ही? आई एम आस्किंग अबाउट हिम. हु इज ही? Wansuk Wangu, right? Yeah, very good. So basically in one of the interviews they have also mentioned this 3H. इन्होंने भी they have also in one of the interviews में उन्होंने भी इस जो 3H की जो importance है they have talk about the 3H: head, heart and hand. So let's see that कि what are the basic characteristics and the things we are going to include it in this 3H. देखो head मतलब all the mental abilities we are going to add it in the head. फिर heart, emotions, feelings, intellectual activities are going to add it here. And head means motor, जो हमारी skills हैं, जो trainings हैं, we are going to add it in the hand portion. ठीक है. And all these are related like this. So that is the reason this chart is looks like this, right? So अब उसको समझने के लिए, इस 3H को समझने के लिए we are jumping towards the Bloom taxonomy, right? Bloom taxonomy. Yeah. So Bloom taxonomy is a set of hierarchical models used to classify teaching and instructional objectives. ठीक है ना. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को दे हैव कीप इन देयर माइंड, एंड उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को दे वांट टू फुलफिल, एंड दैट इज द रीजन अभी ब्लूम टेक्सोनोमीज वर्क ऑन दिस 3H. 3H व्हाट इज? कॉग्निटिव डोमेन, हु विल टेक केयर ऑफ हेड. अफेक्टिव डोमेन, हु विल टेक केयर ऑफ व्हाट? हर्ट. एंड द लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन, that will take care of hand. ठीक है. तो ये 3H का जो फंडा है, this is how we distributed with the help of a Bloom taxonomy. ठीक है. Yes, cognitive is thinking. Let's proceed now. Cognitive domain. Cognitive was published by Bloom's and is associated in 1956. ठीक है. अब in the questions they most of the time, अब nowadays ना there is a very trending question nowadays कि अब they are interested in
इन द कि हु विल कि भाई किसने ये वाला जो पोर्शन है 3H के बारे में जो इन्होंने क्लासिफिकेशन है, दिस काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन लाइक affective domain, cognitive domain and psychomotor, who will give this? So you should know कि Bloom's taxonomy में we have covered this 3 and this is how we distributed the 3H over here. तो little knowledge is also important. They can ask question from that area. अब who is the founder of that particular method या फिर जो भी उन्होंने provide किया है, तो they can ask the name of the authors also. अब जिनके important है उनके I have already added in the PPTs. ठीक है ना. बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दे हैव आस्क्ड अबाउट इट एंड वी हैव नॉट कवर्ड, तो यू ऑल्सो हैव टू एड इट इन योर नोट्स ऑल्सो कि यू सो दैट कि वो आगे के लिए you have to remember. Okay, so revised version of taxonomy for the cognitive domain was created in 2001. अब क्या हुआ कि 1956 में दे हैव प्रोवाइडेड यू ब्लूम टेक्सोनोमी कॉग्निटिव डोमेन की. कौन 3 डोमेन्स है ना हमारे पास, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. ठीक है ना. अब दे आर सेइंग कि 1956 में ब्लूम्स गिव्स अस द कॉग्निटिव डोमेन टेक्सोनोमी, बट 2001 में दे रिवाइज इट, मतलब दे गिव सम चेंजेस टू दिस कॉग्निटिव टेक्सोनोमी. ठीक है ना. Let's see this कि what are the changes in the revised version. Cognitive domain ये core learning domain है, मतलब starting से जहाँ से हमारी चीज़ें start होती हैं, कहाँ से start होती हैं. Let's suppose you want to learn driving, तो सबसे पहले आप सोचोगे उसके बारे में कि is there a necessity कि ड्राइविंग मुझे सीखनी चाहिए या there is a no need, something like that. ये thinking process आपके दिमाग में चलेगा, right? तो ये सबसे कोर है, मतलब सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द योर थिंकिंग मेंटल एबिलिटीज से ही चीजें स्टार्ट होती है, राइट. इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज. इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कम अंडर इन दिस कैटेगरी. इंटेलेक्चुअल जो आपकी माइंड से एक्टिविटीज होती हैं दैट कम अंडर इन द कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव लोड थ्योरी रेफर्स टू द एफर्ट बीइंग यूज्ड इन द वर्किंग मेमोरी. ठीक है. सो लेट्स सी दिस नाउ. Yes, so remembering, understanding, application is the what? Is the revised version of this. तो ये वाला कौन सा वाला था? ये this is your cognitive domain which comes in 1956 में जो आया था, जो ब्लूम ने दिया था, which is given by the Bloom taxonomy. अब आपको क्या चीज़ याद करनी है, what the और कैसे याद करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. और ये पता होना चाहिए फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट इट एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू एंड इट. सो ऑलवेज वी आर एबल टू स्टार्ट विद द नॉलेज. अब ये क्या बता रहा है, हाउ टू रिमेंबर. येस, आई विल टेल यू. देखो, कॉग्निटिव डोमेन इज व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट. कॉग्निटिव डोमेन इज व्हाट? कॉग्निटिव डोमेन इज टॉकिंग अबाउट, cognitive domain is talking about mental abilities, how we are thinking, कैसे चीज़ें काम कर रही है. ठीक है ना. this is how we this thing we have included in the cognitive domain. ठीक है ना. अब देखो सबका जो याद करने का तरीका है वो डिफरेंस होता है. जैसे कि जोत ने बताया कि केस. ठीक है ना. सो ये भी आप ऐसे कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे कभी भी ये चीज़ें ऐसे याद रही नहीं, सच बताऊँ तो. मतलब अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया, ठीक है ना, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड इट ना कि कैसे इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अगर आपको समझ में आ गया तो यू विल इजली एबल टू गिव द सीरीज, गिव द सीक्वेंस. अब कभी भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि 3rd नंबर पे बताओ कौन से वाला है. अगर वो पूछेंगे तो जस्ट दे कैन आस्क यू अबाउट दिस कि अपर मोस्ट लेयर पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड द लोअर मोस्ट पे कौन सी वाली है. बीच वाली वो कभी नहीं पूछते. बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस आता है, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस. उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ईजिली हो जाएगी इफ़ यू नो द कंसेप्ट. गॉट माई पॉइंट. ठीक है. अब देखो, नॉलेज. सबसे पहले तो आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए अगर आपको कुछ नॉलेज है, ठीक है ना, तो नॉलेज से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं. रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन. रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन
दैट कम अंडर इन दिस कैटेगरी. जब हम रट्टा लगाते हैं चीज़ों को, डिस्कवरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो दैट कम अंडर इन दिस कैटेगरी नॉलेज. अब कॉम्प्रीहेंशन, फिर जो नेक्स्ट स्टेज होती है थिंक की किसी चीज़ को समझने की, दिस इज अंडरस्टैंडिंग. फिर हम उनको ट्रांसलेट करने, जब हमने समझ में आ गया ऑलरेडी, हम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन वी आर एबल टू ट्रांसलेट इट ऑल्सो एंड समराइज ऑल्सो. अगर समझ में आ गया तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस ऑल्सो. ठीक है ना. चीज़ों को हमें नॉलेज भी आ गई, अंडरस्टैंडिंग भी होगी. उसके बाद क्या करते हैं हम, वी आर कैपेबल टू इम्प्लीमेंट इट. ठीक है ना. तो यूजिंग एंड अप्लाई नॉलेज. ठीक है ना. यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. नाउ गाइज देखो, मैंने आपको इफ आई हैव गिव यू द नॉलेज अबाउट द एडिशन. ठीक है ना. एडिशन मैंने बताया कि एडिशन होता है सम, राइट. एंड फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गई कि ओके, सम करने से अगर इफ दिस इज द नॉलेज ऑफ योर एडिशन. अब सम करने से इफ आई हैव अ फ्यू थिंग्स देन आई कैन एड इट अप. तो मुझे ये चीज़ें मुझे समझ में आ जाए कि हाउ मेनी थिंग्स आई हैव. तो दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव नाउ एप्लीकेशन. अब आपके पास आए, आप मार्केट में भेजा एंड आपसे पूछा आपकी मदर ने कि तुमने कितना सामान लिया, हाउ मच स्टफ यू हैव इन योर हैंड. तो जस्ट सम इट अप एंड यू जस्ट सेड कि 5 स्टफ्स आई हैव इन माई हैंड. तो आपने अप्लाई किया इन द प्रॉब्लम. फिर है एनालिसिस. अब एनालिसिस में क्या होता है, अब ये तो दिस इज जस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल. अब यहाँ से अगर हम रिसर्च के बारे में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च गाइज, तो जैसे कि नॉलेज आपने स्टार्टिंग में ली, उसको फिर आपने ट्रांसलेट किया, देन अप्लाई करके देखा प्रॉब्लम के अंदर, फिर उसको एनालिसिस किया. अब एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि एनालिसिस में यू हैव अ बिग प्रॉब्लम और देन यू डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पोर्शंस. ठीक है ना. तो एनालाइज किया पैटर्न्स को, ताकि उसके छोटे छोटे पोर्शंस को भी हम अच्छे से रिफाइंड तरीके से वी विल गेट इट. फिर सिंथेसाइसिस. अब जब छोटे छोटे पोर्शंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई, देन वी हैव टू एड इट इनटू द वन बिगर कंसेप्ट. और फिर उस कंसेप्ट, वो आपका जो आपने कंक्लूजन निकाला है, is this conclusion is correct or not, that come under in the evaluation portion. So the moral of the story is कि सबसे पहले अगर मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करें, we are talking about the intellectual activities ना guys. So सबसे पहले we are getting the knowledge. ठीक है ना. नॉलेज मिली, नॉलेज काफ़ी नहीं है, नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट. उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. फिर उस नॉलेज को, दैट पर्टिकुलर नॉलेज को, अब नॉलेज भी है, वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. लेट्स सपोज जस्ट थिंक अबाउट इट, यू हैव अ नॉलेज ऑफ NTA-NET सिलेबस. ठीक है ना. आपको यू नो अबाउट इट, कि एवरी टॉपिक्स यू नो अबाउट इट, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. तो जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट. सो एप्लीकेशन. ठीक है ना. अब एप्लीकेशन किया फिर आपने, अब आपको लगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में तो मुझे मास्टर होना है, आई नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं इसको पढ़ा भी सकता हूँ. ठीक है ना. पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, मैं टीच कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक को. अब मुझे उसमें एक्सपर्टाइज होना है, तो मैं क्या करूँगी. अब वो बड़े वाला टॉपिक था, जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करवा दिया, लेट्स सपोज इट. ठीक है ना. अब मुझे उसमें एक्सपर्टाइज होना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को उठाऊंगी, ब्लूम टैक्सोनॉमी को, और ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत डीप में रिसर्च करूँगी, है ना. फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स. सो आई एम गोइंग टू पिक all the small portion. I'm going to deep study and expertise in particular small topics. अब small topics में when I'm expert ना, then I'm going to combine it. कि अच्छा ये भी अच्छे से हो गया, ये भी अच्छे से हो गया, ये अच्छे से हो गया, ये अच्छे से. Now I'm doing what portion is synthesis. अब वो एक तैयार हो गया, है ना. तैयार करने के बाद फिर उसकी इवेल्युएशन मैंने की कि अब जो मैंने जितना भी किया उससे आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट. इफ आई एम एबल टू सॉल्व इट ना गाइज, देन इट्स क्लियर. गॉट इट. ठीक है, राइट. एक दो बार करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट इट, राइट. अब दिस इज योर रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी. ठीक है. ये 2001 के अंदर रिवाइज हुई थी. डरने वाली चीज नहीं है. देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है ना. वहां पर द नेम ऑफ दिस लेवल इज नॉलेज. ठीक है ना. उसका व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट. नॉलेज इज रिमेंबरिंग ऑफ फैक्ट्स, रट्टा मारना, ये सारी चीजें. तो नॉलेज इज हियर. तो दे हैव जस्ट
दे हैव जस्ट रिप्लेस विद देयर नेम. तो मतलब रिमेम्बरिंग, सबसे पहले हम चीजों को क्या करते हैं, याद रखते हैं, रिमेम्बरिंग, राइट. नाउ इन द सेकेंड स्टेज इज व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ना. तो फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को. उसके बाद एप्लीकेशन को इसने क्या कहा, एप्लीकेशन, अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज. ओके, अप्लाइंग करने के बाद डिवाइड इनटू द स्मॉल पोर्शन सो दैट यू विल गेट एक्सपर्टाइज. है ना. देखो ये चीजें याद करना आसान है कि उसके सिंबल बनाने, या फिर ये चीज आसान है कि अच्छा ब्लूम टैक्सोनॉमी में व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉग्निटिव थ्योरी, तो मैम ने एक एग्जांपल दिया था कि जब हम इफ टीचिंग एप्टीट्यूड का जब वो कोर्स रेडी कर रही थी, तो फिर उन्होंने दे हैव रिमेंबर चीज़ों को पहले पढ़ा, देन अंडरस्टैंड किया, फिर अप्लाई किया, उसके बाद राइट divide into the small portions, then synthesize it and then evaluate it, right. So in this, now the analysis is taking place. So here till here is very much similar. Now they have just flipped these two things. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा देखो, and this is logical also, why this is logical, if I am able to, मैंने this whole sub topic को if I have divided into the small topics, जैसे कि ब्लूम टेक्सोनोमी, मेथड्स, एड्स में मैंने डिवाइड किया, एंड आई वांट मी टू एक्सपर्टाइज इन एवरी सच सब टॉपिक्स. अब आई हैव अ ऑप्शन कि either I have to combine it into the one single unit, and the second thing is, or I want to add it, I have to evaluate it first and then I have to add it. So which approach is best? Directly combine it, or first evaluate it then combine it? So the best one is first evaluate it then combine it, है ना. तो छोटे छोटे पोर्शन ही ठीक रहेंगे, तो वो कंबाइन देखो, इनको इवेल्युएट करना, स्मॉल पोर्शंस को इवेल्युएट करना इज इजी, और कंप्लीट पोर्शन को इवेल्युएट करना इज इजी. कौन सा ज्यादा एरर फ्री होगा? दिस वन इज मोर is more easy for us to evaluate the small portions, right. और एरर डिटेक्शन भी इन पोर्शंस के अंदर ही ज़्यादा पॉसिबल होगी. सो दैट इज द रीजन वी आर इवेल्युएटिंग फर्स्ट एंड देन क्रिएटिंग समथिंग न्यू. मतलब उनसे जो चीज़ें, छोटे छोटे पोर्शन से जो चीज़ें आई, फाइनली वी आर क्रिएटिंग वन. गॉट इट? इजी. नाउ यू गॉट द आंसर कि व्हाई वी आर फ्लिप द फर्स्ट टू टर्म्स. गेट द कंसेप्ट? Get it, guys? So the first one, जैसे कि we have discussed about the areas. So in I've also added a few points related to this. कि remembering is recall previous learned information. Whatever we have learned previously, so we just remembering it. ठीक है. So जैसे कि नोज द सेफ्टी रूल्स, तो ये चीज़ें हमारी नॉलेज के अंदर आती है, रिमेम्बरिंग. ठीक है ना. अब इन द पेपर में ना दे विल गिव यू सम स्टेटमेंट. अब इन द स्टेटमेंट दे जस्ट आस्क यू कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज बिलोंग्स टू व्हाट पर्टिकुलर लेवल. सो दीज आर सम कीवर्ड्स. ठीक है ना. तो आई डोंट थिंक सो कि यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट और क्रैम इट दीज कीवर्ड्स. just have to just look at the keyword. जैसे कि recall, कहीं भी recall आया तो definitely it's come under in this particular level, remembering के level पे. ठीक है ना. तो like जैसे कि identify करना या describe करना, outline करना. So these are the some keywords which come under in the category of a remembering. But this is not a hard and fast keywords because some keywords are overlapped with the other levels also. But कुछ ऐसे keywords हैं जो सिर्फ इस particular level के लिए ही assigned है. जैसे कि recalling of the previous information. उसके बाद है understanding means meaning, translation, interpretation of instructions and problems. Applying on a new concept in the new situation.
नाउ एनालाइजिंग, सेपरेट कंसेप्ट, सेपरेट करना कंसेप्ट को, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन, राइट. डिफ्रेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विशेस, जहां भी ये कीवर्ड्स आए डेफिनेटली कम इन दिस कैटेगरी ऑफ एनालाइजिंग. इवेल्युएटिंग, फाइनली वी आर प्रोवाइडिंग द जजमेंट. ठीक है ना. इवेल्युएशन, एक्सप्लेन, समराइज, ऑल द कीवर्ड्स आर रिलेटेड विद द इवेल्युएशन पोर्शन एंड द क्रिएटिंग. तो सब छोटे छोटे पोर्शन से व्हेन दे फाइनली इवेल्युएटेड ना, सो वी हैव टू कंबाइन इट एंड वी हैव टू क्रिएट अ वन पर्टिकुलर मॉड्यूल. सो जैसे कि फ्यू, जैसे क्रिएट, कंपोज, कंबाइन, कैटेगराइज, ऑल द कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन. ठीक है. उसके बाद विच वन इज द नेक्स्ट स्टेप इज अफेक्टिव डोमेन. अब अफेक्टिव डोमेन इज बेसिकली डील विद द इमोशनल सच एज फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशंस, मोटिवेशंस, एटीट्यूड. ये सारी चीजों के लिए डील कौन करता है? इफेक्टिव डोमेन. ठीक है. So we have, in the same way we have discussed about the Bloom taxonomy, in the same way we have a categorization of the levels in affective domain also, and these are the very easy. So first one is a receiving, second one is responding, valuing, organizations and categorization. So let's see that what the things we are going to include in these. ठीक है. तो इसके अंदर क्या है हमारा? सबसे पहले है रिसीविंग. तो दे मे आस्क कि व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन. सो व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल गाइज? लोवेस्ट लेवल इज रिसीविंग. सो वट एवर वी आर गेटिंग द सब फर्स्ट स्टेप इज द लोवेस्ट लेवल इज रिसीविंग. इट इज सिंपली द अवेयरनेस ऑफ फीलिंग और इमोशंस, अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस. इट इन्वॉल्व्स पैसिवली पेइंग अटेंशन और आई थिंक, जैसे कि एग्जाम्पल, आई थिंक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू विल गेट इट कि व्हाट द बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस. विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर. इफ इंफॉर्मेशन इज नेवर रिसीव्ड यू कैन नॉट बी रिमेंबर्ड. ठीक है. तो सबसे पहले तो रिसीव होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि लिसनिंग अटेंटिवली टू समवन, वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू अ लेक्चर. सो वट यू आर गोइंग टू डू इज कि भाई आप रिसीव कर रहे हो. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो रिसीविंग इज इंपॉर्टेंट. अगर कुछ भी चीज आपको याद रखनी है, अगर इफ यू वांट टू रिमेम्बराइज द टुडेज कंसेप्ट, तो यू हैव टू लिसन इट ना. सो रिसीविंग इज फर्स्ट लेवल. नाउ द सेकेंड वन इज रिस्पॉन्डिंग. यू आर ओनली एबल टू रिस्पॉन्ड ऑफ माई क्वेश्चन, ओनली देन यू आर एबल टू रिसीव इट. जब अगर आपने रिसीव ही नहीं किया तो यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इट गाइज. तो हैविंग अ कन्वर्सेशन, रिस्पॉन्ड कब करते हैं? जब कन्वर्सेशन होती है आपके और मेरे बीच में. जो दिस इज द लाइव चैट एंड वी आर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन कर रहे हैं. बिकॉज यू आर लिसनिंग, यू आर रिसीविंग ऑफ माई लेक्चर्स एंड देन यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, और फिर कन्वर्सेशन पॉसिबल है. पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, ये वाली चीज. ठीक है. फिर आता है हमारे पास वैल्यूइंग. वैल्यूइंग इज द एबिलिटी टू सी द वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट. ठीक है ना. अगर आप उस चीज की वैल्यू समझ रहे हो, इस लेक्चर की वैल्यू समझ रहे हो, ठीक है ना, तो वैल्यूइंग इज कंसर्न विद द वर्थ यू अटैच टू अ पर्टिकुलर. आप इस पर्टिकुलर लेक्चर से क्यों, आप व्हाई यू आर अटैच विद इट? बिकॉज यू हैव अ वैल्यू, है ना. आपको पता है कि इसकी चीज की वैल्यू क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इस चीज की क्या वैल्यू है. तो प्रपोजिंग अ प्लान टू इम्प्रूव द टीम स्किल्स, सपोर्टिंग आइडियाज टू इंक्रीज द प्रोफिशिएंसी. सो ऑल दिस कम अंडर द वैल्यूइंग. एंड देन ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना? हम प्रायोरिटाइज करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी चीज़. अब जैसे कि लेट्स सपोज ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू आर, आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है ना. अब अपने काम को वैल्यू रखते हुए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, दैट कम अंडर इन द पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स putting together different values, information, ideas, then relating them to already held belief to bring it internally consistent philosophy. Spending more time, जैसे कि example, spending more time studying than playing sport. Recognizing the need for balance between the work and family. समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वी आर सेटिंग द प्रायोरिटीज. नाउ करेक्टराइजिंग, जब वो सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में चीज़ें दिखने लग जाएं, तो दैट कम अंडर द कैटेगराइजेशन.
examples, I think you just have to read out the examples and you will get the complete idea about the steps. That is the reason I just added the examples. You spend time with your family, you spend the equal time with your, it's not like you are just पूरा दिन आप पढ़ ही रहे हो या फिर घर का काम कर रहे हो. तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया कि इतना से इतना ही आई हैव टू स्टडी, इतने से इतने बजे मुझे सोना है, इतने से इतने बजे मुझे पढ़ना है, या इतने से इतने बजे मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है. तो अगर आपने प्रायोरिटीज को सेट कर लिया तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जिन चीज़ों की आपने वैल्यू करी है, तो वो आपके नेचर के अंदर दिखने लग जाएंगी. जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यू मेक फ्रेंड्स बेस्ड ऑन द पर्सनली, नॉट बाय द लुक्स और द थिंग्स, है ना. चीज़ों को अगर आपने वैल्यू किया तो गाइज ये कुछ स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले आप रिसीव करते हो, फिर रिस्पॉन्डिंग करते हो, फिर उसकी वैल्यू समझते हो. ये ऑर्गेनाइजेशन है. फिर ऑर्गेनाइज करते हो प्रायोरिटीज को, और वो जो वैल्यूज आपकी हैं, जब आपने ऑर्गेनाइज भी कर दिया, देन वो आपके बिहेवियर में डिपेक्ट करने लग जाएंगी. सो दीज आर द स्टेप्स. गॉट इट? और अभी भी इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट after the class you can just read out these examples. You will get the complete idea about the whatever the they are talking about in the levels. फिर भी नहीं समझ में आए तो I have added these small points over here related to the different parts. Okay, ठीक है. I hope it's clear guys. देखो it's very easy. Receiving, responding, valuing, organization and categorization. Very easy. ठीक है ना. चलो अब द लास्ट वन इज अवर साइकोमोटर डोमेन. और उसके लिए ना वी डोंट हैव वन just like blue cognitive and your affective domain characterization. We have 3 theories over here: Dave, Harrow and Simpson. तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सिम्पसन की थ्योरी है, राइट. सिम्पसन हैज़ गिवन अस द 7 levels फॉर साइकोमोटर डोमेन के लिए. द परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, अडेप्टेशन और ओरिजिनेशन. ठीक है. सो लेट्स सी दैट कि व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू इंक्लूडेड इन दीज पर्टिकुलर levels. This one is the last one of Bloom's taxonomy. Those who are bored, तो उनके लिए this is the good news कि ये ख़त्म होने वाला है. उसके बाद we are going to start solving some questions. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ के भी बोरियत फील होती है, I know that. जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, then we are trying to solve some questions. वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा आपके लिए. अब क्या करना है? परसेप्शन, अवेयरनेस. द फर्स्ट वन इज योर परसेप्शंस. अब लेट्स टेक द एग्जांपल. इफ यू वांट टू लर्न कुकिंग और इफ यू वांट टू लर्न ड्राइविंग, तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दीज आर द स्किल्स ना गाइस. कुकिंग सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, दीज आर द स्किल्स, मोटर स्किल्स, राइट. तो उसके लिए उन चीज़ों को, ड्राइविंग स्किल्स को सीखने के लिए, राइट, we have to go through which steps. This is what we have to understand. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो we are start with the perception, awareness. ठीक है ना. हमारे sensory cues की, from simulation through cues, not. तो सबसे पहले तो awareness होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरी इच्छा है भी या नहीं कुकिंग करने की या फिर ड्राइविंग करने की. इफ आई हैव नो सच प्लानिंग इन माई माइंड देन देयर इज नो यूज ऑफ इट, राइट. सो सबसे पहले तो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इफ परसेप्शन के बाद द नेक्स्ट वन इज योर सेट. तो मतलब रेडीनेस टू एक्ट. नाउ यू हैव दिस रेडीनेस. सेट के अंदर क्या है? माइंड सेट. नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड सेट कि भाई देखो लॉकडाउन इज देयर, वैसे भी लॉकडाउन है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि मुझे कुछ स्किल्स पे आई हैव टू वर्क ऑन इट. एंड माइंड मैपिंग. तो ड्राइविंग या कुकिंग में से यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल एंड आई हैव टू लर्न इट. ठीक है. तो परसेप्शन सेट हो गया, माइंड सेट रेडी हो गया. उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स. अब देखो इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ ड्राइविंग, तो यू नीड समवन हु विल गिव यू द गाइडेंस in the driving, and you need anyone help. If you want to learn the cooking, then you need someone help.
सो दैट दे विल गाइड यू इन द कुकिंग. सो गाइडेड रिस्पॉन्स इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्या है, मैकेनिज्म. सो दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज. अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आप लर्न रिस्पॉन्स हैव बिकम हैबिचुअल. अब आप क्या होने लग जाते हो जब वो आपको गाइड कर रहा है. 7 days की इफ यू हैव टेकन दैट ट्रेनिंग फ्रॉम योर ट्रेनर, उसके बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आप हैबिचुअल होने लग जाते हैं कि ओके दिस इज द क्लच, दिस इज द ब्रेक, दिस इज हाउ आई हैव टू स्पीड, दिस इज हाउ आई हैव टू क्रॉस द अनदर कार, है ना. सो दिस विल कम अंडर इन द मैकेनिज्म पोर्शन. और उसके बाद हम एक्सपर्ट हो जाते हैं. जब हमारे पास फर्स्ट गाइडेंस की जरूरत है, उसके बाद मैकेनिज्म, उसके बाद वी आर एक्सपर्टाइज. पहले हम क्या करते थे, अपनी सोसाइटी में ही वी आर एबल टू स्टार्ट ड्राइविंग की यही करना है. उसके बाद जब हमें लगा कि अब वी आर हैबिचुअल, कि हमें पता है कि ओके एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम आई हैव टू स्लो डाउन माई स्पीड, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम आई हैव टू जस्ट अप्लाई द एक्सीलरेटर एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. उसके बाद व्हेन वी आर एक्सपर्ट, तो फिर क्या करेंगे, हाईवे पे जाके आएंगे कि अब हमें लग रहा है कि एक्सपर्ट हो गए हैं तो हम वी कैन गो इट, राइट. नाउ अडेप्टेशन. अब हमारे जो वो स्किल्स हैं, अब उसके अंदर हम अपने भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं. अब जैसे कि मुझे बोला था मेरे ट्रेनर ने कि 40 की स्पीड्स 60 की स्पीड होते ही यू हैव टू अप्लाई यू कैन से द थर्ड गियर. ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अब मुझे क्या करना है कि मैं सिर्फ जो उसने मुझे फॉलो किया तो मैं सेम स्टेप्स आई एम फॉलोइंग इट. ठीक है ना. अब अडेप्टेशन में क्या होता है कि आप अपनी तरफ से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो. आपको लग रहा है कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद द, लेट्स सपोज 60 के बाद उन्होंने कहा कि 4 गियर यू हैव टू अप्लाई इट, बट इफ आई एम मोर कंफर्टेबल इन 3, मुझे लग रहा है कि नहीं सही चल रही है थर्ड गियर में भी, तो मैं अपनी तरफ से भी उसमें मॉडिफिकेशंस अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं हो चुकी हूँ एक्सपर्ट. गॉट इट. यस. एंड ओरिजिनेशन मतलब क्रिएटिंग, वही चीज अडेप्ट. अब आपने सारे स्किल्स को वेल डेवलप्ड हो चुके हैं वो, और मॉडिफाई पैटर्न्स टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स. अब वही चीज है ओरिजिनेशन में, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. ठीक है. अब यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी पोर्शन के अंदर आ जाती है. ठीक है. गॉट इट गाइज. सो दीज आर द स्टेप्स. सब स्टेप्स को रट्टा मारना नहीं है. ठीक है ना. सिर्फ यू शुड नो द बेसिक स्टेप्स. परसेप्शन और ओरिजिनेशन सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले लेवल पे ओरिजिनेशन है. बाकी वाले स्टेप्स को हम कर लेंगे, बिकॉज हमें ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल वी हैव मेमोराइज इट. ठीक है ना. हमें पता है कि ड्राइविंग वाला दिस इज द एग्जाम्पल. सो सबसे पहले परसेप्शन इज देयर, देन सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, एक्सपर्ट हो गए, अडेप्टेशन अडेप्ट कर लिया, ओरिजिनेशन में अपने खुद के भी चीजें आइडियाज प्रोवाइड कर दिए. सो दीज आर द स्टेप्स इन द ब्लूम टेक्सोनोमी. सो ब्लूम टेक्सोनोमी ने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया. तो 4 पेडागोजी के अंदर द कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड विल गिव यू द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस. तो 4 क्वेश्चंस कौन से थे. व्हाट टू टीच, तो वो तो कंटेंट एनालिसिस में वी हैव कवर्ड इट. व्हाई टू टीच, ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे फुलफिल करना है, दैट द थिंग इज डिस्क्राइब बाय द ब्लूम टेक्सोनोमी. उसने 3 पोर्शन दिए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड द थर्ड वन इज योर साइकोमोटर डोमेन. अब ब्लूम टेक्सोनोमी के जो कॉग्निटिव डोमेन है वो मेंटल एबिलिटीज के बारे में दे हैव टॉक अबाउट. अब उसके अंदर भी 2 हमारे पास 2 टेक्सोनोमी वी हैव, तो वी जस्ट हैव टू रिमेम्बराइज की ओके दीज आर द स्टेप्स. ठीक है ना. फिर अफेक्टिव डोमेन में और सिम्पसम में. So that is a very simple thing guys. Please do not, और I am always saying कि भाई जो writing होती है ना, this is the best way to understand the things for a longer time. तो क्या करना है, अभी तो आप 11 o'clock तो you definitely will take the class. तो कल करना है सुबह उठते ही क्या करना है, 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock आप जब भी आप उठते हो तो वहाँ उठते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले the thing you have to do is you have to राइट डाउन वट एवर वी हैव लर्न ना. स्टार्टिंग से ये वाले जो पॉइंट्स हैं अपनी तरफ से आपने देखा कि अच्छा मुझे कितना याद है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन बिना किसी चीज़ को देखे हुए. ठीक है ना. तो ये जो स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट गाइस. कल सिर्फ रिवाइज करना है. रिवाइज अगर कंप्लीट हो जाता तो नेक्स्ट डे से यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. अच्छा
वो जो भी है, मतलब जिसका भी जो टाइम टेबल्स है, कुछ लोग सुबह उठते हैं, कुछ लोग रात को सोते हैं, तो जैसे भी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। या आई होप इट्स क्लियर गाइज। So I think for refreshing purpose we have to solve some questions, right? So let's solve some questions, then we will start the new topic which is very important and interesting also. So let's see this. Yes, so this is the question. Please tell me the answer of this question. Which of the following is the key teaching behavior to make teacher effective? Key teaching behavior to make a teacher effective. टीचर को इफेक्टिव बनाने के लिए की टीचिंग बिहेवियर क्या होना चाहिए? So teacher comments. So option number C. Teacher comments made for the purpose of organizing upcoming teaching process. Use of content and process questions by teacher. ठीक है ना, ये भी कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट. यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन. देखो टीचिंग को इफेक्टिव आपकी तब आपकी अच्छे से बन पाएंगी जब एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस. अब जो लर्निंग प्रोसेस है, अगर हम मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स आप मेरे साथ शेयर करें. इफ यू आर ऑल्सो शेयरिंग द पॉइंट्स एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग सम पॉइंट्स and I am giving the example of a driving car, you are also thinking the same and you are giving कि ma'am cooking is also one of the example we can relate with this, then I can say that कि भाई देखो ये इफेक्टिव टीचिंग हो रही है कि बच्चे इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टेड है, वो भी रिलेट कर पा रहे हैं. इन द लाइव क्लास you have not aware about that particular topic before, but still I'm giving you the some examples कि you can easily relate with some other real life examples. तो अगर स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बहुत प्रॉपर है लर्निंग प्रोसेस में, तो ये एक बहुत अच्छा की टीचिंग बिहेवियर है फॉर द इफेक्टिव टीचर. ठीक है ना. आइडियाज भी आप ले सकते हो कंट्रीब्यूशंस के लिए, बट एक प्रॉपर जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में क्या होता है कि यू आर एक्सचेंजिंग द आइडियाज ऑल्सो. तो ये वाली जो टर्म है, ये तो इसके अंदर वैसे भी ऑलरेडी इनबिल्ट होके आ रही है. ठीक है. सो दैट इज द रीजन कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, दिस इज द बेस्ट वे टू गिव द आंसर. अब यूज ऑफ कंटेंट, ये तो देखो टीचर ने ये तो यूज करना ही है, बिकॉज अगर मैं इफ यू आर नॉट यूजिंग द कंटेंट गाइज, देन हाउ कैन आई विल टीच यू. So you have to ask these types of a question. जब भी आपको correct answer you have to provide it and you just confused. So try to listen try to give you the cross questions like this. ठीक है ना, कि कौन से वाला बेस्ट हो सकता है. Now this one is the next question. Tell me the answer of this question also. And guys, this class is at 8 only. ठीक है ना. Next class is from 9 to 11 PM and I will assure you that कि जो 9 to 11 वाली PM वाली class है, this is going to be a very very interesting and very very important. This is the basic thing which I have discussed with you guys, because मैं directly वहाँ से start नहीं कर सकती थी, because कुछ students ऐसे हैं जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ. Some students are there in the class, those who have not studied this particular topic before. So that is the reason I have included those important topics in the last class. ठीक है ना. So last class को बिल्कुल भी मिस नहीं करना. ये क्लास थोड़ी सी स्लो थी हमारी. The reason behind it, because I want to create a base for the teaching aptitude, right? So the next 2 hour class is very very important. Definitely question 2 to 3 question definitely come from that portion. So 9 to 11 class should not, you guys should not be missed at any cost. ठीक है. तो 1 hour gap we have. डिनर करना है, रिफ्रेश होना है, जल्दी से कर लो. उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. ओके.
So what is the answer? Please tell me what is the answer. Question is, in the list given below identify those key teaching behaviors, ठीक है ना, which have been observed to be contributive of effectiveness. देखो effectiveness से they have asked many questions. So probing क्या क्या मतलब होता है? What is the meaning of a probing, guys? Can anybody tell me? हाँ, this is what I'm asking. Probing. Anyone? What is the meaning of probing? Question answering. Very good. प्रॉबिंग मीन्स, प्रॉबिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप या क्वेश्चन आंसर कर रहे हो. जैसे कि इफ आई वांट टू नो कि भाई आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना. इफ आई वांट टू नो कि इन ब्लूम टेक्सोनोमी में यू विल गेट इट और नॉट, तो मैं क्या करूँगी, व्हाट टाइप ऑफ अ थिंग टेक्निक आई एम गोइंग टू यूज? प्रोबिंग. मतलब आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू. सो दिस इज काइंड ऑफ अ टेक्निक, ठीक है. तो इफेक्टिवनेस में दिस क्रिएट नहीं, सर्चिंग नहीं, क्वेश्चन आंसरिंग करना बच्चों से एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट कि उनको समझ में आया या नहीं आया. स्टूडेंट विल गेट इट और नॉट. सो दिस काइंड ऑफ अ टेक्निक विच वी आर यूजिंग, राइट. प्रॉबिंग. सो प्रॉबिंग तो बहुत अच्छी टेक्निक है. तो दिस टेल मी. सो सेकेंड, आई थिंक सेकेंड इज द फेयर लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, स्टूडेंट सक्सेस रेट. स्टूडेंट सक्सेस रेट शुड बी पार्ट ऑफ इट. बताओ. What is the correct answer, guys? Please tell me. What are the things you are going to add it? स्टूडेंट्स आइडियाज़ को यूज़ करना बेस्ट होगा या नहीं होगा, पहले तो ये जज करो. स्टूडेंट आइडियाज़, वी कैन यूज़ इट बिकॉज वी वॉन्ट द कंप्लीट इफेक्टिवनेस. बिकॉज इन द लास्ट वन ना, वी आर एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, है ना. तो इफेक्टिव टीचिंग में एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज देयर. तो इट मीन्स दैट कि आइडियाज़ को भी वी कैन कीप इट, राइट. तो सेकेंड और सिक्स तो हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है. तो सेकेंड और सिक्स कहाँ पर जा रहे हैं? सेकेंड और सिक्स देखो यहीं पर आ रहे हैं. ये मतलब इस तरह से यू हैव टू गिव द आंसर. कई बार कैसे क्या होता है कि हमें हर पॉइंट को हमें वी डोंट गेट द आइडिया कि ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट और नॉट. सो अगर आप 2 के लिए भी अश्योर है तो यू कैन ईजिली गिव द करेक्ट आंसर, गाइस, ठीक है ना. तो थर्ड एंड फिफ्थ व्हाट इज द टास्क? टीचर टास्क ओरिएंटेशन भी टास्क है कि दिस व्हाट वी हैव टू कंप्लीट इट. Third, what is this? Task orientation. And fifth one is your instructional variety. I think the answer should not be included instructional variety, because that is not students ideas. We can use it, but not that much extent, yeah. So because the lesson clarity should be there, for the effectiveness teaching it should be there, propping it should also be there. Student success rate, इसके लिए भी we can judge it, because अगर रेट ही नहीं, सक्सेस रेट नहीं होगा तो देर इज़ नो सच इफेक्टिवनेस टीचिंग. अगर आपने पढ़ाया है, कोई बच्चे अगर नेट क्लियर ही नहीं कर पाए, तो देर इज़ नो सच, वी कैनॉट से दैट कि दिस इज द इफेक्टिव टीचिंग, राइट. and the teacher is task orientation, yeah. So option number 1 is the correct one.
सक्सेस स्टूडेंट आइडियाज को भी हम यूज कर सकते हैं, बट वो हमारा होगा एंगेजमेंट के अंदर, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। बट अगर हम एक प्रॉपर यूज करना है, यस लेसन क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यस राइट। तो उसके लिए दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शनल वैराइटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती। देखो ये इंस्ट्रक्शन वैराइटीज में भी हमारी चीजें हो सकती हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स आई कैन वेरी द इंस्ट्रक्शंस कि इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, और स्टूडेंट आइडियाज को भी हम यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। सो दैट इज द रीजन कि लेसन क्लैरिटी तो ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको तो हम इंक्लूड करना ही करना है। सो दैट इज द वन कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ठीक है ना। वेरी गुड। So this is the next question, please. Characteristics and basic requirements of a teaching. So what is the answer of this question now? Please tell me. Same approach you have to use it now. Tell me what is the answer? Tell me answer, guys. This is very easy question. देखो क्वेश्चन ध्यान से सुन, देखो पहले क्वेश्चन को प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन अगेन। दे आर आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, देयर शुड बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट, या उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, वो जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए। देखो टीचर इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है, अगर कम्युनिकेशन नहीं देन हाउ कैन दे टीच, ठीक है ना। टीचिंग इम्प्लाइज मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, मैनेज भी करना है क्लास को, मॉनिटर भी करना है कि सही तरीके से जा रही है या नहीं, ठीक है ना। टीचर इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस थोड़ा करना है मैं मुझे इन्फ्लुएंस करना है कि मैं आपको अच्छी टीचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। कन्विंस मैं आपको ऐसे करूँ, प्लीज आपको मुझसे पढ़ना ही पड़ेगा, प्लीज आपको मुझसे पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम मी, राइट। सो कन्विंसिंग इज नॉट देयर, इन्फ्लुएंसिंग शुड बी देयर। अब नो टीचिंग विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट लेट्स सपोज कि आप मेरे घर पे आए एंड यू जस्ट आस्किंग कि मैम एक डाउट है, लेट्स सपोज हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जस्ट आपको वैसे भी टीच कर सकती हूँ, राइट। सो दैट इज द रीजन कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हमें फॉर द टीचिंग पर्पस, बट बिना उसके भी टीचिंग हो सकती है, राइट। सो कन्विंसिंग नहीं करते, इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। और दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और द रिक्वायरमेंट। सो दैट इज द रीजन। हाँ, वी आर डूइंग ऑनलाइन, बट इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेट्स सपोज हम फेस टू फेस मिले, कहीं पर हम बाई चांस हम मिल गए और आपने कहा कि मैम अच्छा हुआ आप मिल गए, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, तो आप बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जस्ट एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां भी आपको पढ़ा रही हूँ तो टीच कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। Right. So the correct answer is what? Option number 1. Right? Yes.
Infrastructure is not a necessary condition, it is a sufficient condition, right? So this is the next question, guys. Please tell me the answer of this question now. So what is the answer? Yes, कल सर ने पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था? So which among the following reflect best quality of teaching in a classroom? So try to just cut it down, eliminate the options. Through the use of many teaching aids in the classroom, मैं बहुत ज़्यादा teaching aids लिया हूँ. Different aids क्या हैं आपके? टीचिंग एड्स, टीचिंग डिफरेंट की चार्ट्स ले आई, डिफरेंट आइडियाज़, फ्लिप कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, इस तरह की कुछ मैं चीज़ें लेके आई आपको समझाने के लिए. वो ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है, या थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन क्लासरूम, वो चीज़ इसके इंक्लूड होगी, या थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, या थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम. व्हाट द थिंग यू आर गोइंग टू एड ऑन इन दिस वन? सो ऑप्शन नंबर 2 कि किस क्वालिटी के जो क्वेश्चंस है बच्चे क्लास में आपसे पूछ रहे हैं इन द क्लासरूम, दैट विल गिव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. ठीक है, उसके बाद we are going to end this session, and I will let इस question के बाद I will tell you कि in the next session what the things we are going to cover in the next session, so that you guys will get to know कि what the things are there in the next session. So the first one is pedagogy. ठीक है, तो pedagogy के अंदर ये सारे questions, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. pedagogy, andragogy, pedagogy 2.0, the latest वर्जन ऑफ इट. ठीक है, हुटागोजी, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, हुटागोजी. फिर एजुकेशन की वर्जन्स, एजुकेशन 1.0, 2.0, 3.0. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, जैसे कि लेक्चर मेथड, प्रोग्राम्ड मेथड, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट इज द कोलैबोरेटिव लर्निंग, व्हाट इज द टीम टीचिंग, बस ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेज. ठीक है ना, एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. तो गाइज नाउ डेज ना दीज आर द हॉट टॉपिक्स, एंड एनटीए से जो क्वेश्चंस घुमा फिरा के हर स्ट्रीम्स में पूछ रहे हैं, तो वो यहाँ से डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क इट, एंड यू शुड हैव अ वेरी क्लियर नॉलेज about these topics. So that is the reason I have added here, and I have added I will teach you with the help of this image and all the things. तो ये आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला. And we have added all the things over here. Look at this now. Teaching aids is very important. So evaluations, ठीक है. So this is your evaluation techniques, memory, and method of teaching according to the different schools. Okay, ठीक है. So all the things I'm going to include in the next session of the class. Okay guys, please do not miss it, because these are the very important terms, and these are very बच्चे वहाँ तक जो simple चीज़ें हैं वो सब करके जाते हैं, but ये जो
चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो दीज आर द दोज टॉपिक्स, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना. डोंट वरी अबाउट द PPTs, यू विल डेफिनेटली विल गेट इट इफ यू ऑलरेडी इनरोल्ड इन द कोर्स. ठीक है, तो यू डेफिनेटली यू विल गेट इट टुडे ओनली. एंड नाउ जस्ट टेक द 1 hour break, and we will come back and we will start from here, assessment and evaluations. ठीक है, I hope you will get the basic idea now कि भाई कितना teaching, what is the teaching, what are the different characteristics of the teaching, what is the Bloom taxonomy, what type of a question we are finding it out with the help of a Bloom taxonomy. So the whatever the things we have covered in this portion. एंड अब जो आगे वाले पोर्शंस हैं, दीज आर बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवेल्युएशंस हो गई आपका, एंड टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, एंड डिफरेंट स्कूल्स जिन्होंने टीचिंग को डिफरेंट एरियाज में, मेथड्स को डिफरेंट एरियाज में वो किया, और कुछ ऑथर्स कि किसने who is the founder of which method. So these are also hot topics. So please don't miss the next class, and we will start the session at 9 to 11. ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ज़्यादा आप इंजॉय करोगे. आई एम pretty much sure about it. ठीक है, so thank you so much guys, see you at 9. अभी अच्छे से रिफ्रेश हो जाओ and we will start it again. Okay, bye bye.